مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی 4 سال کے بعد وطن واپسی کی۔ آج وہ وطن واپس پہنچ رہے ہیں۔ خصوصی چارٹر تیاریوں کو فضائی حدود کے استعمال اور لاہور اسلام آباد ایئرپورٹ پر لینڈنگ کی اجازت بھی مل گئی ہے۔ تو 4 سال کے بعد سابق وزیر اعظم نواز شریف مسلم لیگ نون کے قائد آج لاہور پہنچیں گے اور لاہور میں جلسہ عام سے وہ خطاب بھی کریں گے۔ پلان یہ ہوگا کہ خصوصی چارٹر طیارہ فضائی حدود کے استعمال اور لاہور اسلام آباد ایئرپورٹ پر لینڈنگ کی جسے اجازت مل گئی ہے پہلے اسلام آباد لایا جائے گا، اس کے بعد وہاں سے وہ لاہور پہنچیں گے، لاہور میں جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف 4 سال کے بعد آج وطن واپس پہنچ رہے ہیں۔ خصوصی چارٹر تیاری کو فضائی حدود کے استعمال اور لاہور اسلام آباد ایئرپورٹ پر لینڈنگ کی اجازت بھی دے دی گئی ہے۔ قائد نون لیگ کا جہاز آج دوپہر اسلام آباد پہنچے گا۔ قانونی مشاورت کے بعد لاہور کے لیے وہاں سے روانہ ہوں گے اور لاہور میں ان کا استقبال کیا جائے گا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اسحاق ڈار کی جانب سے کہا گیا، جبکہ یہ بھی بتاتے چلیں کہ نواز شریف کا مینار پاکستان پر جلسے سے خطاب بھی شیڈیول ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کا مینار پاکستان گراؤنڈ میں جلسہ تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز کا مینار پاکستان جلسہ گاہ کا دورہ۔ مریم نواز نے مینار پاکستان گراؤنڈ میں ہونے والے جلسے کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ صدر نون لیگ شہباز شریف اور حمزہ شہباز بھی مریم نواز کے ہمراہ تھے، جس کے مناظر بھی آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ مختلف علاقوں سے آئے لیگی کارکنوں کی کثیر تعداد جلسہ گاہ میں موجود تھی۔ پنڈال میں پارٹی پرچموں کی بہار، سٹیج پر بڑی اسکرین بھی لگا دی گئی ہے۔ جلسہ گاہ اور اس کے اطراف قائد نون لیگ کی تصاویر والے خیر مقدمی بینرز بھی آویزہ کیے گئے ہیں۔ جلسہ گاہ میں پارٹی ترانوں کی گونج سنائی دی، آتش بازی کا مظاہرہ بھی کیا گیا۔ نواز شریف کا استقبال، ملک بھر سے قافلے لاہور کی جانب روانہ۔ کے پی اور سندھ سے مسلم لیگ نون کے کارکنان ٹرینوں کے ذریعے لاہور کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ نون لیگ کے کارکنان کے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے، نواز شریف کے حق میں نعرے بازی بھی دیکھنے میں آئی ہے۔ تو نواز شریف کا استقبال کی تیاریاں تمام تر مکمل کر لی گئی ہیں۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے ملک بھر سے قافلے لاہور کی جانب روانہ ہو چکے ہیں۔ کے پی اور سندھ سے مسلم لیگ نون کے کارکنان بھی لاہور کے لیے روانہ ہوئے ہیں اور کارکنان نے ٹرینوں کے ذریعے لاہور روانہ ہونے کا سوچا ہے۔ نون لیگ کارکنان ڈھول کی تاپ پر بھنگڑے بھی ڈالتے رہے اور نواز شریف کے حق میں نعرے بازی بھی کرتے رہے۔ نواز شریف کے استقبال کی تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اور جلسے کا بھی انعقاد کیا جائے گا آج لاہور میں، جس کے لیے ملک بھر سے قافلے لاہور کی جانب روانہ ہو چکے ہیں۔ کے پی اور سندھ سے مسلم لیگ نون کے کارکنان ٹرینوں کے ذریعے لاہور پہنچیں گے۔ نون لیگ کے کارکنان کی ڈھول کی تاپ پر بھنگڑے اور نواز شریف کے حق میں نعرے بازی بھی دیکھنے میں آئی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ نگران وزیر اعظم کا فلسطینی صدر کو ٹیلی فون، غزہ کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ ٹیلی فونک رابطے میں نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے صدر محمود عباس سے فلسطین کی موجودہ صورتحال پر گفتگو کی۔ عالمی برادری خون ریزی روکنے کے لیے اسرائیل پر زور دے، انوار الحق کاکڑ کی جانب سے مطالبہ کیا گیا۔ عالمی برادری غزہ میں خون ریزی روکنے کے لیے اسرائیل پر زور دے، ایسا کہا گیا انوار الحق کاکڑ کی جانب سے، کیونکہ اہم رابطہ ہوا ہے۔ نگران وزیر اعظم کا فلسطینی صدر کو ٹیلی فون، غزہ کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ٹیلی فونک رابطے میں نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے صدر محمود عباس سے فلسطین کی موجودہ صورتحال پر گفتگو کی اور موجودہ صورتحال پر افسوس کا اظہار بھی کیا گیا ہے۔ انوار الحق کاکڑ کی جانب سے کہا گیا کہ عالمی برادری خون ریزی روکنے کے لیے اسرائیل پر زور دے، عالمی برادری غزہ میں خون ریزی روکنے کے لیے اسرائیل پر زور دے، ایسا کہا گیا ہے انوار الحق کاکڑ کی جانب سے۔ نگران وزیر اعظم کا فلسطینی صدر کو ٹیلی فون، غزہ کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا ہے۔ جنگی جنون میں مبتلا طاقت کے نشے میں اندھے اسرائیل کی غزہ میں جارحیت جاری ہے۔ غزہ میں ہر طرف تباہی اور بربادی کے ڈیرے ہیں۔ شہید فلسطینیوں کی تعداد 4137 ہو گئی ہے۔ 13500 سے زائد فلسطینی زخمی ہیں۔ شہیدوں میں 1500 سے زائد بچے اور 1000 خواتین بھی شامل ہیں۔ مظلوم فلسطینی ملبے تلے اپنے پیاروں کی لاشیں نکالنے میں مصروف ہے۔ تفصیل کے لیے رپورٹ دیکھیے۔ صہیونی فورسز کی غزہ میں ریاستی دہشت گردی جاری۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں گھر، اسپتال، سکول سب کچھ تباہ کر دیا۔ ہر طرف تباہی و بربادی نے ڈیرے ڈال لیے۔ اسپتالوں میں ڈاکٹرز مریضوں کو بے ہوش کیے بغیر آپریشن کرنے پر مجبور۔ مظلوم فلسطینی عمارتوں کے ملبے سے اپنے پیاروں کی لاشیں ڈھونڈنے میں مصروف۔ اسرائیلی فوج غزہ کا نام و نشان مٹانے کے در پہ۔ صہیونی فورسز کی رفاح کراسنگ کے قریب رہائشی عمارتوں پر بمباری، درجنوں فلسطینی شہید ہو گئے، متعدد زخمی۔ غزہ میں
जिंदगी के आसार खत्म होने लगे, सेहूनी फोर्सेस ने जुल्म के पहाड़ तोड़ने में कोई कसर न छोड़ी। गजा के अस्पतालों की हालत अबतर, स्कूलों का नामो निशान मिट गया, हर तरफ तबाही और बर्बादी के डेरे। मजलूम फलस्तीनी आलमी बरादरी की जानिब से इमदाद के मुंतज़िर। मगरबी किनारे में भी इजरायली फौज की कार्रवाइयां जारी। इजरायली फौज ने 7 अक्टूबर के बाद मगरबी किनारे में 81 फलस्तीनियों को शहीद, मुतअद्दिद को गिरफ्तार जबकि सैकड़ों को जख्मी कर दिया। एमक्यूएम पाकिस्तान के तहत फ़लस्तीन यकजहती रैली का इनेकाद हुआ। कन्वीनर एमक्यूएम पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि आज पाकिस्तानियों ने अपनी गैरत और ज़मीन का मुजाहिरा कर दिया है। बहुत जल्द फ़लस्तीन में जुल्म का खात्मा हो जाएगा। पाकिस्तान का बयानिया आज इस्लामाबाद से नहीं बल्कि कराची से जा रहा है। अली मेहंदी की रिपोर्ट देखिए। एमक्यूएम पाकिस्तान के तहत शारा फैसल पर फलस्तीन यकजहती रैली का इनेकाद किया गया। रैली में जमीयत उलमा इस्लाम, ANP, मुस्लिम लीग नून, GDA, मजलिस वहादत मुस्लिमीन और शिया उलमा कौंसिल समेत ईरान के कौंसलेट जनरल और मुख्तलिफ मकातिब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद शरीक हुए। रैली से खिताब में कन्वीनर एमक्यूएम पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि आज इंसानियत के हक में पूरी दुनिया में होने वाले मुजाहिरों का सबसे बड़ा मुजाहिरा कराची में हुआ है। इसराइल के जुल्म और फलस्तीनी मुसलमानों, खवातीन और बच्चों पर बमबारी की शदीद मजम्मत करते हैं। जुल्म के खिलाफ जंग में कराची सबसे आगे होगा। ये इसराइल के खिलाफ और इंसानियत के हक में जंग के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ, जबर के खिलाफ, और जब भी जबर होगा तो कराची बरसरे पैकार नजर आएगा। इस्लामी मुल्क के हुक्मरानों जिनका ज़मीर जरकमाल है, उनके खिलाफ भी, ये ज़मीर फरोशों के खिलाफ भी जिंदा ज़मीर पाकिस्तानी इंशाअल्लाह खड़े होंगे और इस जुल्म का खात्मा होगा। रैली से खिताब करते हुए डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना था कि पूरी उम्मत मुस्लिमा फलस्तीनी मुसलमानों के साथ है। बड़ी ताकतों ने जिस तरह इसराइल का साथ दिया है, जुल्म का साथ दिया है, तो हम दुनिया के मजलूमों, फलस्तीन के मजलूमों को यकीन दिलाते हैं कि अब ये दुनिया तकसीम हो रही है। रैली के शुरका से ANP के सदर शाही सैयद, GDA के लाला रहीम, नाहिद अब्बासी, मौलाना हसन जफर नकवी, अल्लामा राशिद महमूद सोमरो, मुफ्ती अताउल्ला, जमील राठौर और किश्वर ज़हरा समेत दीगर ने खिताब किया और फलस्तीन में जारी इसराइली जारियत के फौरी खात्मे का मुतालबा किया। श्रीलंका की फौज के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम मैंगलियांगे ने जनरल हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की। श्रीलंकन आर्मी चीफ ने पाक फौज की पेशा वराना महारत और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए ऑपरेशंस में कामयाबियों की तारीफ की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि श्रीलंका के पाकिस्तान और इसकी मुसल्लह फौज के साथ तारीखी ताल्लुकात हैं। श्रीलंकन फौज के कमांडर का जनरल हेडक्वार्टर्स का दौरा, आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में पेशेवराना दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा दिफाई ताल्लुकात को बढ़ाने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया गया। श्रीलंकन आर्मी चीफ ने पाक फौज की पेशेवराना महारत को सराहा और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए जारी ऑपरेशन में कामयाबियों की तारीफ की। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर का कहना था कि श्रीलंका के पाकिस्तान और इसकी मुसल्लह अफवाज के साथ तारीखी ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक खास तौर पर दिफाई और तरबियती शोबों में तावन कर रहे हैं। कबल अजीज GHQ आमद पर श्रीलंकन आर्मी के कमांडर ने यादगारी शोहदा पर फूल चढ़ाए। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। श्रीलंकन फौज के कमांडर हफ्ते को पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में पासिंग आउट परेड देखेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तलात पर लकी मरवत के इलाके सिमोआंडा में ऑपरेशन किया गया। शदीद फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए। एक दहशतगर्द को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस का लकी मरवत के इलाके सीमोवांडा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द जहन्नम वासिल, एक दहशतगर्द जख्मी हालत में पकड़ा गया। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों समेत बेगुनाह शहरियों की टारगेट किलिंग में भी मुलविस थे। कार्रवाई के दौरान मुख्तलिफ नौइयत के हथियार, आलात और धमाका खेज मवाद भी बरामद किया गया। मकामी लोगों ने ऑपरेशन को सराहा और दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए भरपूर तावन के अज़म का इजहार किया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। पंजाब हुकूमत ने गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को 31 अक्टूबर तक पंजाब छोड़ने का हुक्म दे दिया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। पंजाब में 1 नवंबर से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ कार्रवाइयों के हवाले से इक़दामात का जायजा लिया गया।
पंजाब हुकूमत ने गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को 31 अक्टूबर तक पंजाब छोड़ने का हुक्म दे दिया। डेडलाइन के बाद गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। तमाम मुतल्लिका इदारों और एजेंसियों को इस ज़मन में ज़रूरी अहदाफ सौंप दिए गए। इजलास में 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस मुल्ज़िमान के खिलाफ दर्ज केसेस के चालान के हवाले से पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया। इजलास में चीफ सेक्रेटरी, IG पुलिस, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी कानून समेत मुतल्लिका हुकाम शरीक हुए। कमिश्नर्स और RPOs वीडियो लिंक के जरिए इजलास में मौजूद थे। PTI वर्कर सनम जावेद की इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत से जमानत का मामला रिहाई के फौरी बाद सनम जावेद को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस मुलजिमा को कैदियों की वैन में कोट लखपत जेल ले गई। मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट देखिए। जिना हाउस के बाहर गाड़ियां जलाने के मुकदमे में जमानत और रिहाई के बाद सनम जावेद को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने सरकारी वकील की जमानत खारिज करने की सदा मुस्तरद करते हुए सनम जावेद की जमानत मंजूर कर ली और रिहा करने का हुक्म दिया, जिसके बाद सनम जावेद की रिहाई की रोपकार जारी कर दी गई। मुलजिमा के वकील का दौरान समाअत मौकफ था कि पुलिस ने सनम जावेद के खिलाफ झूठा और सियासी बुनियादों पर मुकदमा दर्ज कर रखा है। खातून से तफ्तीश के दौरान कुछ बरामद नहीं हुआ, मजीद तफ्तीश की जरूरत भी नहीं है। मुलजिमा जुडिशल रिमांड पर जेल में है। अदालत जमानतें मंजूर करने का हुक्म दे। पुलिस सनम जावेद को कैदियों की वैन में लेकर कोट लखपत जेल रवाना हो गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल हसन पर मुश्तमिल कमेटी के फैसले के बाद अहम मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल और आम इंतखाबात का मुकदमा सोमवार को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। मुल्क भर में एक ही दिन इंतखाबात कराने के लिए दायर दरख्वास्त पर 3 रुकनी बेंच मंगल को समाअत करेगा। इस्लामाबाद से रिपोर्ट। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल और 90 रोज में इंतखाबात से मुतालिक मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर। एक ही दिन इंतखाबात के लिए दायर दरख्वास्त पर भी समाअत आइंदा हफ्ते होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमात के फरीकैन को नोटिस भी जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत 23 अक्टूबर 11:30 बजे होगी। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में कायम 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक शामिल हैं। केस की गुज़श्ता समाअत 3 अगस्त को हुई थी। अदालत उज़्मा में 90 रोज में आम इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक केस की समाअत भी 23 अक्टूबर को होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनल्ला बेंच में शामिल हैं। मुल्क में 90 रोज में आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए सुप्रीम कोर्ट बार और PTI समेत दीगर ने दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को बंद करने का हुक्म देते हुए बाबू साबू प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने का इंदिका दे दिया। मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने हारून फारूक समेत दीगर की दरख्वास्तों पर समाअत की। दरख्वास्तों में स्मोक पर काबू पाने के लिए इकदामात करने की इस्तदा की गई है। दौरान समाअत कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा पेश हुए। अदालत ने करार दिया है कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को फौरी बंद किया जाए, काले धुएं वाली फैक्ट्रियों और भट्टों को मिसमार किया जाए। अदालत ने लाहौर में ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाने की भी हिदायत की। कमिश्नर लाहौर ने अदालत को बताया कि कसूर में चमड़े की फैक्ट्रियों और कारखानों को वार्निंग देते हुए साफ पानी की साइकिलिंग के लिए इकदाम फौरी शुरू करने की हिदायत की गई है। लाहौर में पौधे लगाए जा रहे हैं, अवाम को आगाही दी जा रही है। कमिश्नर लाहौर ने कहा है कि इजाजत के बगैर सड़कें खोदने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। कमिश्नर लाहौर ने इस्तदा की है कि बाबू साबू प्रोजेक्ट पर काम रोकने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो चुकी है। अदालत प्रोजेक्ट दोबारा शुरू करने की इजाजत दे। जस्टिस शाहिद करीम ने कमिश्नर लाहौर के इकदाम को सराहा और कहा कि आप हिफाजती इकदामात की रिपोर्ट पेश करें। अदालत मंसूबे के खिलाफ नहीं है। अदालत ने तमाम अफसरान को मुखातिब करते हुए कहा है कि अगर हुकूमत अदालती अहकाम पर अमल दरामद करवा ले तो स्मोक पर कंट्रोल किया जा सकता है। जस्टिस शाहिद करीम ने दरख्वास्तों पर मजीद कार्रवाई आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी।